So in this session, we'll be continuing from what we have discussed in the previous section, that is JavaScript. JavaScript is a scripting language. Why do we need it? Because in HTML, we do not have any interactive feature available. In HTML, we only have tags to display information on the website. But whenever we want some interaction with the user, we have to take use of the JavaScript. So JavaScript will be learning today, and we'll be taking a calculator program, for example, and then we'll try to understand how functions are used in JavaScript, how we pass parameters, how the users can interact and make use of JavaScript. So let us begin. I'll start with the HTML boilerplate. Here I'll create a div with ID is equals to calculator. And we'll create two tags here. One is a style. This style will be used for styling, and one will be a script that will be used for scripting. So scripting will be using for JavaScript functions, and style will be using for CSS. Now we want a calculator program. So in this calculator program, we'll be trying to understand the different features of JavaScript functions, global variables, how common variables are used, how global variables are used. So everything will be discussed here. Let us begin with an input type equals to text. This text will have an ID of, suppose, let us give it D1. So this is please everyone. Input type equals to button. The value for the first button will be 1. We'll have 10 buttons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 and 0. The calculator, there are 10 digits. So these are the 10 buttons. Then we'll have operators.
The operators will have, in a basic calculator, the operators will have plus, minus, multiplication, and division. So the operations that needs to be performed. Then there will be a clear button. Let me see. And then there will be equals to, and let us see the output. First we'll do the basic designing and then we'll come with the functionality. So this is the calculator. All the buttons are there, but it's not looking good. So we'll try to do some basic decorations for it with the help of CSS. So let us come to the code. Four buttons. Four buttons in one line. And let us come to the styling part. So dot calculator. This will be our first CSS style. This is the div that will be designed here. So let us say that the width of the calculator will be 400 pixel. The height maybe 600 pixel. Border, the radius is suppose 15 pixel. Margin to make it, bring it into the center. Then we have padding. Background color. Let's take this color. Now let us see the output. Nothing has happened as of yet. Let us see why. And okay. This has to be the class. Class equals to calculator. यहाँ पर क्लास लिखते हैं और यहाँ पर जो नाम है कैलकुलेटर वो मेंशन करते हैं और these are the attributes for the decoration. Now let us come. Let's see the output. ये कुछ ऐसा हो गया. अभी इसको हम लोग थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. So, height 600 pixel is not required. Relative 300 pixel or 200 pixel. अब buttons के लिए हम लोगों को क्लास बनाना होगा. Class equals to dot btn. बटन कैसा दिखेगा उसको हम लोग इस क्लास से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट जो बटन दिख रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग ब्यूटिफाई करेंगे. विल नॉट गो डीप इनटू CSS, जस्ट प्रेजेंटेबल बनाना है.
All these are buttons, so only one CSS will be used for all these. ओके, अब यहाँ पर ये जो BTN हम लोगों ने लिखा है उसमें क्या क्या कलर्स और ये सब होगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं विड्थ, बटन का विड्थ ले लेते हैं सपोज 20 पिक्सेल्स, कलर ले लेते हैं बटन का दिस, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं बटन का बैकग्राउंड कलर ब्राउन, और बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 4 पिक्सेल्स, और दो बटन के बीच में जो गैप होगा अब हम लोग आउटपुट देख लेते हैं अब कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एक लाइन में 3 ही आ पा रहा है तो हम लोग 3 ही रखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा आ जाते हैं कोड में फिर से। Instead of 4, we'll keep 3 buttons in one line. और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर बटन में कोई बॉर्डर नहीं होगा। यहाँ पर यूज H2 अब देखते हैं आउटपुट कैलकुलेटर ऐसे दिख रहा है, थोड़ा इसको और बेटर बनाते हैं। ये ऊपर में जो है बहुत ऊपर चला गया, उसको गैप थोड़ा दे करके थोड़ा नीचे लाते हैं, ऊपर में गैप डालने के लिए थोड़ा सा ऊपर से गैप आ गया। तो ये जो ऊपर से नीचे लाना है ये मार्जिन से आएगा, और ये जो व्हाइट एरिया लेफ्ट साइड और व्हाइट एरिया राइट साइड दिख रहा है ये मार्जिन से आएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लेफ्ट राइट के लिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया है, तो ये सेंटर में दिख रहा है, और ऊपर से हम लोगों ने 50 ले लिया है। यहाँ पर देखिए ये जो मार्जिन है इस मार्जिन में हम लोगों ने टॉप बॉटम 50 लिया है, तो ये ऊपर से 50 आ गया है, और ऑटो लिया है तो ये सेंटर में आ गया है। पैडिंग जो है वो उसके लिए है, जो अंदर में उसके जो स्पेस है होता है उसके लिए। और बटन का हम लोग विड्थ तो मेंशन कर दिए हैं, हाइट भी मेंशन कर देते हैं, हाइट मेंशन कर देते हैं टेक 20 पिक्सल, लेट अस सी कैसा दिख रहा है और फिर हम लोग उसको ऑल्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर सकते हैं। पिक्सल करके देख लेते हैं, पिक्सल ज्यादा सही है। और इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कैलकुलेटर में, ऊपर में जो ये स्पेस आ रहा है कैलकुलेटर में दैट वी हैव टू डिक्रीज। ये कैलकुलेटर में पैडिंग ये जो 20 है जो ऊपर में आ रहा है इस पैडिंग को हम लोग कर देते हैं 5। ऊपर का जो गैप है वो कम हो जाएगा इस पैडिंग से। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर का गैप कम हो गया है, इसको और हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 पिक्सेल्स
टेक्स्ट सेंटर अब आउटपुट डेवलपमेंट पास आ रहा है, सब सेंटर में आ गया है। और ये जो हाइट है, इस हाइट को थोड़ा सा और वी शुड इंक्रीज द हाइट ऑफ द calculator. The calculator का height instead of 300 let us make it 300 pixels. और आप देखते हैं ये कैलकुलेटर का हाइट सही हो गया। और ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है दैट नीड्स सम डेकोरेशन, और नीचे में जो क्लियर और इक्वल्स टू है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा उसका विड्थ और ज्यादा कर देते हैं। क्लियर और इक्वल्स टू का विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना है और इसको करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग और डॉट btn1 क्लास ले रहे हैं, इसमें ये कॉपी कर लेते हैं। अभी what we need is the width instead of 50 let us try with 100। और ये जो btn1 है this will be applied on the last two, तो ये btn1 ये कर देते हैं। ये देखते हैं ये ज्यादा हो गया, एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग उसको 100 is more, हम लोग यहाँ पर let us make it it's just with 70। थोड़ा स्पेस हो सकता है, हम लोग इसको कर देते हैं 75। Now let us see थोड़ा स्पेस है, so let us make it 80। से थोड़ा सा और के पास make it 82। Now let us see almost it हो गया। Now what we want is some decoration with this text box। here बस पहले हम सही कर लेंगे क्या और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें हम लोगों ने कोई डेकोरेशन है क्या, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट। Now we need one more dot txt1। इसमें हम लोग width pixel height 5 pixel। ऊपर नीचे जो कंट्रोल्स है उसका मार्जिन हम लोग ले लेते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल्स आउटपुट कर देते हैं सेंटर के लिए। और radius 10 पिक्सल, color अब देखते हैं ये ज्यादा होगा, इसको देखिए मार्जिन कुछ करना है, मार्जिन थोड़ा और सकते हैं। ये ठीक है, और इसके नीचे में जो स्पेस है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर
बॉटम में थोड़ा गैप चाहिए, 20 पिक्सल, 15 पिक्सल। तो हम लोगों ने सिर्फ बॉटम में गैप लिया, ये जो गैप था उसको हम लोगों ने ले लिया बॉटम में। और ये नीचे से थोड़ा सा और इसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए तो नीचे एंड हो गया है। तो कैलकुलेटर का जो बॉक्स है उसका हाइट हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये जो कैलकुलेटर है इसका हाइट 350 है, लेट अस मेक इट 370। अब हम लोग देखते हैं। तो अवर डिजाइन पार्ट इज ओके नाउ। तो ये हम लोगों का है, कैलकुलेटर का हम लोगों ने डिजाइन कर लिया। अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नंबर डालेंगे और ये नंबर को ऐड करने का काम करेगा। और ये जो इसके में बॉर्डर आ रहा है उस बॉर्डर को हटा दो। उस बॉर्डर को हटाने के लिए बॉर्डर 0 कर देते हैं आप। और इसमें जो लिखना है कलर, इसका बैकग्राउंड कलर में करके कलर पे डिफॉल्ट ब्लैक। तो ये आ गया कैलकुलेटर हम लोगों का। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं, टेक्स्ट लाइन हमने राइट कर दिया इसलिए कोई राइट साइड से लिखते हैं। और इधर एकदम एंड से हो जा रहा है, तो ये जो अंदर में गैप होता है दैट इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ पैडिंग। तो अंदर का गैप को थोड़ा सा टेक्स्ट में हम लोग पैडिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पैडिंग पिक्सल और इसको देखें। अब ये सही है, तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखने और यहाँ पर ये जो लिखने का काम होगा दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ बटन्स। तो कैलकुलेटर का डिजाइन पार्ट इज ओवर। नाउ लेट अस कम टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट। Let us start with the JavaScript. This was CSS, very basic CSS we have used. और हम लोग CSS आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट वॉट एवर वी हैव लर्न वी हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इट इनटू वन एग्जांपल। अब इस कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग हर एक बटन के को क्लिक करने से कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। व्हाट विल बी द एक्शन व्हेन द यूजर विल क्लिक द बटन नंबर 1, तो इसमें 1 लिख जाना चाहिए, 2 क्लिक करने से 2 लिख जाना चाहिए, वैसा कुछ क्लियर करने से क्लियर हो जाना चाहिए। तो लेट अस कम टू द कोडिंग पार्ट। तो दिस वाज ऑल about the style. Now we'll be concentrating on the script. और यहाँ पर we'll start with a JavaScript function. JavaScript में हम लोग जो कोड लिखते हैं उसमें स्टार्ट होता है फंक्शन से, और जो नंबर टाइप होगा उसके लिए n, और जो नंबर भेजेंगे वो हो जाएगा पैरामीटर इसमें। तो कोई भी बटन क्लिक होगा तो ये नम फंक्शन कॉल होगा, और ये नम फंक्शन क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा t1 नाम से, इसमें वो वैल्यू को डालेगा। अब एक को हम लोग करके पहले देखते हैं। जब वन बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। ये बटन क्लिक होगा तो ये नम फंक्शन कॉल होगा, और इस नम फंक्शन में वैल्यू क्या जाएगा 1, और ये 1 वैल्यू जो हम लोग भेजेंगे
इसको कोट्स में रख लेते हैं, और ये वन वैल्यू यहाँ से जाएगा और इस एक्स में आ जाएगा, और एक्स से इसको कहाँ लेकर के जाना है, इसको लेकर के जाना है टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स में ले जाने के लिए हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है T1, T1 लिखेंगे, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जो हम लोगों ने एक्स में भेजा है, एक्स। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि इतना हो करने से क्या हो रहा है। नाउ लेट अस कम टू द आउटपुट, और वन बटन क्लिक कर रहे हैं। अभी कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब there is some mistake, let us refresh it, कुछ नहीं हो रहा है वन बटन क्लिक करने से। ओके, अगर कुछ ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं और काम हो नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्लास बटन ऑन क्लिक इज नम फंक्शन, यहाँ से हम लोग वन भेज रहे हैं, ये एक्स में जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज T1, ये इट हैज टू बी इन कोट्स, उसका वैल्यू अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। अब देखिए वन क्लिक करने से यहाँ जा रहा है, बट अब भाई वन अगर 11 डालना है, 111 डालना है, तो ये दो बार तीन बार क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, बस एक ही बार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम लोगों ने अभी कोड में सिर्फ एक बार ही लिखा है, तो इसको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पहले से जो चीज है, एक वेरिएबल बनाते हैं, और जो पहले से वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग पहले निकालते हैं। तो पहले से जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो एक वेरिएबल में निकाल करके, और हम लोगों ने वैल में ले लिया, और अब उस वैल में हम लोग वैल इज इक्वल्स टू वैल प्लस एक्स करेंगे। तो जो पहले से अगर एम्प्टी है, तो उसमें फर्स्ट टाइम ये कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें जो फर्स्ट वन डालेंगे वो आ जाएगा, लेकिन एक बार वन है तो वन पहले हम लोगों ने उसमें से निकाल लिया, ये क्या करेगा, पहले का वैल्यू को पहले निकाल लिया और उसमें फिर से ऐड करेंगे, तो दो बार वन क्लिक करेंगे तो ये वन वन हो जाएगा। थर्ड टाइम क्लिक करेंगे तो पहले का वैल्यू वन वन ऑलरेडी होगा, उसमें एक वन और ऐड हो जाएगा, और नाउ दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द टेक्स्ट बॉक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेन एवर द बटन वन इज क्लिक्ड, तो ये नम फंक्शन कॉल होगा, ये नम फंक्शन वन वैल्यू लेकर के जाएगा एक्स में, और वहां से जो पहले से वैल्यू है उसको वैल नाम के वेरिएबल में लेगा, उसमें एक्स को ऐड करेगा, और इस तरह से काम होगा। अब आते हैं यहाँ, और दिस इज द फर्स्ट क्लिक, दिस इज द सेकंड क्लिक, दिस इज द थर्ड क्लिक। आप देखिए जितना बार हम लोग क्लिक कर रहे हैं काम हो रहा है। द सेम एक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड विद all these 10 digits. So what we will do, we'll copy this function, और इसी को हर एक बटन में पेस्ट करना होगा। और ये वैल्यू वन की जगह पे जो बटन है उसका नंबर जो है वो, सिक्स सिक्स
ओके, अब हम लोग आउटपुट देखते हैं, बट ये दिस इज बिकॉज एक बटन हम लोगों ने अभी कम कर दिया है, एक बटन रिपीट हो गया है। व्हाट इज, लेट्स एडजस्ट द लुक फर्स्ट। वन क्लिक कर रहे हैं, टू क्लिक कर रहे हैं, 12 हो जा रहा है, 3 क्लिक कर रहे हैं, तो 123 हो जा रहा है। अब क्या होना है, अब whenever an operator is clicked like plus minus multiplication division, तो जब ये कोई ऑपरेटर हम लोग क्लिक करेंगे प्लस या माइनस, तो ये जो नंबर है, ये दिस नंबर विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, और दिस टेक्स्ट बॉक्स शुड गेट क्लियर सो दैट द यूजर कैन स्टार्ट एंटरिंग द सेकंड नंबर। तो इसके लिए ये जो ऑपरेटर्स क्लिक होगा उसके लिए हम लोगों को फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट अस कम हियर, और इन ऑपरेटर्स के लिए अगेन विल create function on click equals to op1, suppose this is the operator, plus minus multiplication and division। अब ये जब op1 फंक्शन क्लिक होगा तब हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फंक्शन op1, जो ऑपरेटर आएगा वो x में आ जाएगा। और अब हम लोगों को उस ऑपरेटर को और ये जो पहला नंबर है उसको स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम लोग आकर के दो वेरिएबल बनाएंगे, num1 एंड ऑपरेटर। तो जब कोई भी ऑपरेटर प्लस माइनस क्लिक होता है तो इस टेक्स्ट बॉक्स में पहले से जो भी वैल्यू है, this value will be stored in the variable num1, so num1 is equals to 12 है तो 12 num1 में चला जाएगा, और OPR का वैल्यू हो जाएगा जो अभी ऑपरेटर क्लिक हुआ है, प्लस माइनस जो भी है, तो ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। और अब क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को हम लोगों को क्लीन कर देना है, जिससे द यूजर कैन एंटर द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को क्लीन कर देते हैं, क्लीन करने के लिए इक्वल्स टू एम्प्टी कर देते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि इतना से क्या काम हो रहा है। सपोज आई एंटर 12, नाउ आई एंटर प्लस, नाउ आई एंटर 5, तो ये अब जो 5 है यहाँ पे, दिस शुड गो इनटू द सेकंड वेरिएबल num2, और अब इक्वल्स टू करने से 12 प्लस 5 होना चाहिए, अगर माइनस क्लिक करते तो फिर माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को इक्वल्स टू के क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन और हम लोगों को बनाना पड़ेगा।
we'll come to the coding part. और अब यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं इक्वल्स टू पे फंक्शन rather function function क्लीन फंक्शन हम लोगों ने जो बनाया है इसको क्लियर में डाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे रिजल्ट। अब क्या हो रहा है रिजल्ट फंक्शन में सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग नाम, और इस नाम टू वेरिएबल में क्या आएगा जो प्रेजेंट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स का है वो आ जाएगा। तो नाम टू इज इक्वल्स टू जो भी प्रेजेंट वैल्यू, तो 12 जो पहले हम लोगों ने एंटर किया दैट इज स्टोर्ड इन num1 और अभी जो 5 एंटर किया दैट कम्स इनटू num2। अब इन दोनों में हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट कैलकुलेट करना है इनटू दिस रिजल्ट वेरिएबल। बट रिजल्ट क्या होगा दैट विल डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटर जो ओपीआर में हम लोगों ने स्टोर किया है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ ओपीआर इक्वल्स टू प्लस then result is equals to num1 plus and the same for all the operators। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, I'll explain once I write this plus minus multiplication and division। और अब जो रिजल्ट है that will again go back into this text box। So this will have the value of result। अब कैसे काम हो रहा है I'll try to explain it। हम लोग एक नोटपैड खोल लेते हैं। Now see, we have variable num1, we have variable OPR, and we have variable num2, and we have variable result। जब हम लोग 1 और 2 क्लिक कर रहे हैं और 1 और 2 क्लिक करने के बाद हम लोग कोई भी ऑपरेटर क्लिक करते हैं, जैसे प्लस क्लिक कर रहे हैं, तो प्लस क्लिक करने से क्या हो रहा है कि जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में था दैट इज स्टोर्ड इन num1 और प्लस ऑपरेटर जो है वो इसमें स्टोर हो जाता है। अब हम लोग इसमें टाइप कर रहे हैं सपोज 35, ये 35 यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर्स क्लिक कर, इक्वल्स टू जो बटन है वो क्लिक करेंगे। तो व्हेन वी आर क्लिकिंग द इक्वल्स टू बटन क्या हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले 35 को हम लोग num2 में ले रहे हैं और रिजल्ट में हम लोग बना रहे हैं 12 plus 35 दैट शुड बी 47। तो ये 47 आना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं इक्वल्स टू क्लिक करने से क्या होता है। अभी जो इक्वल्स टू क्लिक कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ 47 व्हाट इट इज शोइंग 12 and 35 concatenated।
इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं होकर के स्ट्रिंग एडिशन हो रहा है। हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकल एडिशन करना है। तो मैथमेटिकल एडिशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल एडिशन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं नम वन नम टू का, दिस इज मैथमेटिकल एडिशन। इसके लिए वी हैव अ फंक्शन पार्स इंट। तो ये पार्स इंट फंक्शन क्या करता है, इसको नंबर बना देता है, इंटीजर नंबर। पार्स फ्लोट करेंगे तो ये फ्लोट नंबर हो जाएगा। तो ये हम लोग अगर करेंगे तब क्या होगा, ये नम वन और नम टू पे अरिथमेटिकल एडिशन होगा। The same thing has to be performed in all these cases. Same with plus, minus, multiplication and also with the division. अब यहाँ पर आकर के हम लोग इसको डिविजन का काम कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक बार इसको रन करके देखते हैं कैसे काम हो रहा है। नाउ 12 प्लस 5 equals to 17. Okay, minus 6 equals to 11. 11 into 2 equals to 11 into वाला काम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि into वाला फंक्शन में हमें कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्स इंट num1 पार्स इंट num2 अब यहाँ पर हम लोगों के पास है कि ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने भेजा क्या। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने कैपिटल एक्स भेजा है और यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल एक्स लिखा है, से वो मैच नहीं करते हैं, ये मैच हो जाएगा। Now let us see 10 into 3 equals to 30 divided by 15 equals to 2 minus 2 equals to 0। तो ये हम लोगों का एक कैलकुलेटर रेडी हो गया जिसमें हम लोगों ने बेसिक सीएसएस यूज किया है फॉर डेकोरेशन और बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज किया है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फंक्शंस। जो काम हो रहा है इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। देखिए हम लोगों के पास जो फंक्शंस है वो एक फंक्शन है नम नाम से जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू फर्स्ट टाइम वैल्यू डाल रहा है और सभी 0 to 9 एक ही काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 तक भेज दिया। उसके बाद 4 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसके लिए हम लोगों ने 4 फंक्शन बनाया, OP1 OP2 OP1 और उसमें हम लोगों ने x में भेजा है कि उसका ऑपरेटर क्या है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब हम लोगों का ऑपरेटर क्लिक होता है, पहले से जो टेक्स्ट बॉक्स में नंबर है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है और इस नंबर को और इस ऑपरेटर को स्टोर करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देना है ताकि यूजर कैन एंटर द सेकेंड नंबर। और जब रिजल्ट बटन क्लिक होगा तो यहाँ पर हम लोगों को num1 का जरूरत पड़ना है। तो अगर हम लोग इस वेरिएबल num1 को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, वैर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वैर num1, तो दिस विल बिकम अ लोकल num1 वेरिएबल और ये लोकल num1 वेरिएबल जो बन जाएगा तो यहाँ पर वो एक्सेस नहीं हो पाएगा।
तो whenever we have to use a variable in more than one function, तो वहां पर हम लोगों को उस वेरिएबल को ऊपर में लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो ये बन गया अब ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पर जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट कैन बी एक्सेस इन ऑल द फंक्शंस। सो यहाँ पर these are the global variables। ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं जब हम लोगों को किसी वेरिएबल को मोर देन वन फंक्शन में यूज करना होता है। अभी अगर हम आपको दिखा रहे हैं, आई इफ आई सपोज आई डू नॉट डिक्लेयर द वेरिएबल एज ग्लोबल और हमने नंबर को लोकल बना दिया है, अब देखिए क्या होगा। सपोज वी एंटर 12 नाउ प्लस नाउ 5 इक्वल्स टू, देखिए क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है बिकॉज पहला नंबर तो ग्लोबल था ही नहीं, पहला नंबर बना ही नहीं। इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा, उसको ग्लोबल बनाना पड़ता है। whenever we want any function to be used in more than one, whenever we want to use any variable in more than one function, that variable needs to be declared as global। तो यहाँ पर हम लोगों ने num1 को ग्लोबल बनाया है। अब देखिए ये दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ये कब कॉल हो रहा है, कोई भी डिजिट क्लिक होगा तब ये कॉल होगा और ये टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू निकाल रहा है और वापस उसी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल रहा है। तो जो वैल्यू लेकर के आ रहा है 1 कर लेकर के आया, उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो इट शुड बिकम 12। तो अगर हम लोग ये दोनों लाइन नहीं लिखें, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, 1 डालेंगे तो 1 दिखने लगेगा, 2 डालेंगे तो 2 दिखने लगेगा, लेकिन 1 के बाद 2 डालने से इट शुड बिकम 12। तो उसके लिए पहले से जो वैल्यू है उसमें ऐड करके हम लोग दिखा रहे हैं। तो व्हेनेवर डिजिट्स आर क्लिक, यही सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। ऑपरेटर क्लिक हो रहा है तब क्या कर रहे हैं, पहला नंबर को हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम लोग रिजल्ट में भी यूज कर पाएंगे। और फिर ऑपरेटर को भी हम लोगों ने रख लिया कि कौन सा ऑपरेटर क्लिक हुआ है। और जब रिजल्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तब रिजल्ट बटन में हम लोग यहाँ पर जो रिजल्ट बटन क्लिक हो रहा है तब क्या कर रहे हैं, पहले तो जो अभी नया नंबर है टेक्स्ट बॉक्स में उसको num2 में ले लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ऑपरेटर कौन सा क्लिक हो चुका है पहले। ऑपरेटर इक्वल्स टू बटन क्लिक करते समय ऑपरेटर नहीं क्लिक हो रहा, ऑपरेटर पहले क्लिक हो चुका है, इसलिए इसको ग्लोबली हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया है और इसको यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेस करना है इन द रिजल्ट फंक्शन। दैट इज व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड दिस ओपीआर एज ग्लोबल। और अब जो भी इसमें से ऑपरेटर क्लिक होगा विल परफॉर्म द ऑपरेशन। एक और चीज यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है कि whenever we add two values, it is treated, the two values are treated as a string by default in JavaScript, so we have to convert it into number। So if the number is integer, we use the function parseInt, if it is float, we use parsefloat। parseInt बना करके हम लोगों ने ऐड किया, जो भी रिजल्ट आया इसको वापस टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दिया। एक फंक्शन बच गया है क्लियर। क्लियर में जो भी वैल्यूज हैं हम लोगों का num1 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ऑपरेटर में जो है इसको हम लोग एम्प्टी कर देंगे, तो num1 ऑपरेटर में जो पहले से था ये सब क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों का जो टेक्स्ट बॉक्स में भी अगर कोई वैल्यू होगा तो इसको भी हम लोग मेमोरी क्लियर कर रहे हैं, तो मेमोरी में जो वैल्यूज था उसको क्लियर कर दे रहे हैं और टेक्स्ट बॉक्स में स्क्रीन पे जो वैल्यू था उसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब अगर हम लोग रन करते हैं एक बार और फिर से देखते हैं, सपोज हम लोगों ने डाला 12, फिर डाला प्लस, फिर डाला 5 इक्वल्स टू, अभी इक्वल्स टू डालने से नॉट अ नंबर आ गया, NaN, दिस इज नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर मतलब हम लोगों का कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। लेट अस सी क्या हो गया। क्लीन फंक्शन variable num1 OPR, num1 OPR, num2 result,
result. Let's see what is happening. Let's go refresh. This is 12 plus 6 equals to not a number. 12 plus 6 equals to not a number. क्यों आ रहा है, इसको डिबग करना पड़ेगा. ये एरर हो गया, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए. तो ये नॉट अ नंबर दे रहा है, तो पहले हम लोग अलर्ट लगाते हैं कि हमारे पास नंबर में क्या स्टोर है. फिर हम अलर्ट लगाते हैं हमारे पास ओपीआर में क्या स्टोर है. ओके, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ. 10 plus 3 equals to, ये देखिए आ रहा है अनडिफाइंड. ये अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब num1 इसको अभी नहीं मिल पा रहा है. ये ऑपरेटर मिल रहा है, तो num1 नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो num1 is what? ओके, यहाँ पर हम लोगों ने जो लोकल बनाया था, इसको ये लोकल रह गया, तो इसको ग्लोबल करना पड़ेगा. अगर सेम नाम से लोकल और ग्लोबल दोनों हो जाता है तो प्रेफरेंस इज गिवन टू लोकल, ग्लोबल एक्सेस ही नहीं हो पाता है. अब ये रिजॉल्व हो गया. नाउ वी शुड कमेंट, और अब यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं. 14 into 2 equals to 28. सपोज आगे हमको कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, नया कैलकुलेशन करना है. 28 इज नॉट माई फर्स्ट नंबर. अब सपोज हम लोग को 25 प्लस 50 करना है, तो क्लीन, ये क्लीन करने से मेमोरी से सारा नंबर नम2 का जो वैल्यूज है सब बच जाएगा. तो हम लोग नया काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 34. अगर प्रीवियस अभी 34 है, इसको यूज करके हमको प्लस करना है, तो यहाँ से प्लस 34 प्लस 2 करेंगे, ये 36 हो जाएगा. लेकिन इस 36 पे आगे काम नहीं करना है, तो मेमोरी क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सी बटन. So this was all about JavaScript and CSS. We have given this example of calculator. We have tried to understand the concepts, basically JavaScript concepts. JavaScript में जो actions perform होता है, that is done with the help of functions. तो हम लोगों ने functions सीखा है, ठीक है. नया चीज सीखा है, ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है. व्हेन मल्टीपल फंक्शन होगा तो ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है फॉर दोस वेरिएबल्स व्हिच आर टू बी यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन. अब इस वैल वेरिएबल के सिर्फ इसी फंक्शन में जरूरत है, तो दिस विल बी लोकल वेरिएबल. सिमिलरली रिजल्ट में जो num2 है, इसकी सिर्फ इसी फंक्शन में यूज है, तो दिस इज अ लोकल वेरिएबल. रिजल्ट इज यूज्ड ओनली हियर, सो दिस इज अ लोकल वेरिएबल. बट num1 को देखिए, num1 and OPR is being used in result. Num1 and OPR is used in clean. Num1 is used here in OP1. So such variables are to be declared as global. Global कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे ऊपर में कर देंगे तो ये हो जाएगा global. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखा है कि arithmetical additions के लिए we have to convert the values into numbers, and that is done with the help of parseInt function. So this is what is required to create a interactive calculator. I hope you have understood. Try to go through the code and try to understand, try to create this, and then try to understand the concept. We'll meet again in the coming session.